Assalamualaikum girls. Yesterday or in the last lecture, I have told you that I'm going to teach you about how to make the diagram. Right now, I don't have logi. जैसे रिकॉर्ड करना शुरू किया है, they have started right. So I have to tell you how to make the animal cell or how to make a plant cell. The thing is that we have covered chapter number 1 and we have covered chapter number 2, and there was no diagram in that chapter. And then basically in the whole year we have to cover 4 chapters, so we are going to have quite ample of time, not quite ample of time, ample of time to cover the 3rd and 4th chapter. Maybe I will start 3rd chapter as well, but today I'm going to teach you how to make an animal cell from page number 58. Although the animal cell in the page number 58 is like, you can see that focus, it is 3-dimensional. इस तरह से है और इस तरह से है. I'll give dimension later on, or maybe I will give side by side, और फिर इस तरह से कुछ extra cellular particles से हैं. ठीक है, तो basically 2-dimensional diagram is also enough. Even in 3-dimensional diagram of an animal cell, figure 4.8, there is kind of special angles which I'm going to miss. The diagram is like this. The diagram is like इस तरह से करके है, तो I'm missing that part. I'm not making that angle to, और इस तरह से, और फिर बीच में भी कुछ angle है, तो we can do it like this. We can, अब चूँकि मैं recording भी कर रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे, let's say I'm making the boundary of an animal cell, okay, and then I'm giving it an angle, 3-dimensional angle कह लें. It's just to give it a 3-dimensional look. You can make animal cell little bit different from book, मतलब थोड़ी सी boundary change हो सकती है, and you can skip this part जो कि मैं ये draw कर रही हूँ. This is not necessary to draw. कुछ इस तरह से है, ठीक है. The key is that you have to be closer to the book. You have to draw closer according to your book. कुछ चीज़ें हम थोड़ा सा modify कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हम modify नहीं कर सकते. So in this diagram of an animal cell, my dimension of a cell is a bit different, which I can do, but I cannot totally change the shape of the nucleus. यहाँ पर भी मैं 3-dimensional nucleus नहीं बना रही. I am making nucleus in a easier version. This is nucleus, and shall I make the membrane? I'm not showing membrane over here. Double membrane show कर दूँगी, but I'm not making angles over here. Sorry. मैं काफ़ी दूर से डायग्राम बना रही हूँ, and then I start to look from the mobile too. Now in my case, why the mobile is stationary? I'm keeping mobile on the table, on the glass table, and I'm making video below the glass table, and I'm sitting on a stool. तो इस वजह से ये इतना stationary है. So you can give this idea to other teachers as well, to make the mobile stationary while making videos. This is nucleolus, and then as I'm making diagram from pointer, you are not going to make the diagram from pointer. Basically we will make diagram from pencil, because you have to rub your something which goes against the rules. तो यहाँ पर ये क्या किस्सा है कि I don't have proper pencil right now, so I'm using pen directly. तो उसमें जो है here in this diagram न्यूक्लियस की कुछ थोड़े से पैचेस बने हुए हैं. आई एम सॉरी, क्रोमोसोम्स के यूँ पैचेस बने हुए. पेंसिल से आपने शेड कर देना है इस तरह करके. क्रोमोसोम की विजिबिलिटी की भी डिफरेंट स्टेजेस होती हैं. पेंसिल से लाइट शेड करेंगे. पॉइंटर का मेक लाउड. ओके बेटा, मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, आप पढ़ो. शाबाश. तो
दिस इज़ हाउ, आई मीन ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट पेंसिल से लाइटर शेड होगा तो न्यूक्लियोलस विल बी डार्क, तो प्रोमिनेंट हो जाएगा, राइट। पॉइंटर से लाइट शेड नहीं हो पा रहा। दिस इज़ आई एम शोइंग क्रोमोसोम। सो इफ़ आई मेक द, अच्छा लेबलिंग साथ साथ करूँ या क्या करूँ? Whenever I'm going to show you labeling in during college classes, I always tell you to use scale. I can't do it now just to save time and things like that. And what I recommend is whenever you label, you have to label it properly. जैसे न्यूक्लियस है, with the help of a scale, और बराबर रखेंगे। अभी आप समझेंगे मेरा पेज बड़ा है। जस्ट प्लीज़, अच्छा जस्ट टू टेल यू, मैंने डायग्राम थोड़ी पेज से बड़ी बनाई है, अदरवाइज़ एक पेज के ऊपर डायग्राम हो सेंटर में तो लेबलिंग भी उसी पेज पे हो। लेकिन जस्ट टू टेल यू राइट नाउ, मेरी डायग्राम पेज को थोड़ा सा बाहर निकल रही है, बट आई विल कीप द लेबलिंग ऑन द सेम लेवल टू मेक इट लुक नीट, यानी ऐसे बराबर बराबर ही रखना है जिसको भी लेबल करने लगे। दिस इज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो आपने लेट्स से ये एक ही पेज है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड देन दिस इज़ न्यूक्लियोलस। एक ही पेज पे बराबर दीज क्या कहेंगे, पॉइंटिंग्स टूवर्ड द थिंग, क्या कहते हैं इसको, वट एवर यू कॉल इट, लेबलिंग should end at the same point to make it look neat. हमजा प्लीज, मैंने आपको कहा था रिकॉर्डिंग के दौरान अपनी ऑडियो, वाओ 12 टेडीज, जाओ अभी मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये टॉय बना हुआ है, जाओ। न्यूक्लियोलस एंड दिस वन इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा हम पढ़ा तो नहीं रहे ना, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ टू मेक द, oh it's not nuclear membrane, what I'm saying, it's I'm going to label it as nucleus, ठीक है, न्यूक्लियस ओवरऑल कह लो या न्यूक्लियोप्लाज्म कर लो, लेकिन अभी चले, आई एम टेलिंग यू कि दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूक्लियस। दिस इज़ न्यूक्लियस हैज़ अ डबल मेम्ब्रेन एंड दिस ब्लैक स्पॉट लाइक थिंग इज़ न्यूक्लियोलस, दीज आर क्रोमोसोम्स, और उसके अंदर और भी चीज़ें हैं बट अभी रहने देना। अच्छा उसके अलावा पहले मुझे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना लेना चाहिए था। लेट्स सी कि मैं कंफ्यूज तो नहीं करती। अब इस न्यूक्लियस के गिर्द वी मेक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन दिस वे। बुक में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ रियली कॉम्प्लिकेटेड, जस्ट इमेजिन हाउ आई एम मेकिंग इट। लेबलिंग्स को थोड़ा सा इग्नोर कर दें फॉर अ वाइल। ये देखो हमजा प्लीज़, सारा बता के आई हूँ कि आपने नहीं आना, और मैं आपको फ़ोन भी दूँगी थोड़ी देर के लिए। ऐसे एक तरफ से बना दी। दिस इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये देखो, ये क्या है? आपको फ़ोन नहीं मिलेगा मामा अभी, ये मुझे क्या है? रिकॉर्ड करने दें, शेड आ रहा है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मामा देखें बना रही हैं, अपने स्टूडेंट्स को शो कर रही हैं। इसको पता ही नहीं है स्टूडेंट्स कौन सा? प्लीज़ अब हिलाना नहीं है। कौन सा? ये आई एम मेकिंग एनिमल सेल। एनिमल्स? तो थोड़ी मेरी डायग्राम गलत हो रही है अब बिकॉज ऑफ हमजा। ऐसे करके, और इधर भी अब फिल इन कर देते हैं। वाओ गुड जॉब। थैंक यू। गुड जॉब। तो ये थोड़ा सा मैंने ऐसे ही फिल इन कर दिया, इसी को ही लेके जाओ प्रॉपरली। हमजा अगर आप साइड पे हो जाएं तो मेरी अच्छी डायग्राम। थैंक यू। तो ये हमजा की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो रही है। इसी तरह से यू कैन चेंज थोड़ी बिट, आई मीन ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ दोनों तरफ कर दें, फिल इन कर दें। ये चीज़ इस तरह से ना हो जैसे मैंने अभी किया, प्लीज़। ये देखो अब बेटा यहाँ पे खड़े, वहाँ पे ये खड़े हो देखो जाओ। तो दिस इज़ ऑल अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप ये टेबल भी हिला रहे हो प्लीज़, इसीलिए अब this is endoplasmic reticulum, and when I want to make it rough endoplasmic reticulum I have to attach little ribosomes on it on the outer surface. ये इसका बल्स,
इसका बल्ब, इसका बल्ब। This is, there are two endoplasmic reticulum, rough endoplasmic reticulum and smooth. इसका बल्ब। Smooth अभी मैं नहीं बना रही, लेकिन if the ribosome is not attached on the endoplasmic reticulum, then it is smooth endoplasmic reticulum. If ribosomes are attached on it, then it is rough endoplasmic reticulum. काइंडली टेबल से हट जाए, यहाँ पे शेड आ रहा है। थैंक यू बेटा। हमजा आपको फ़ोन चाहिए कि नहीं चाहिए? फिर मैं नहीं दूंगी, और मैं आइसक्रीम भी नहीं दूंगी जी, मैं कोई चीज़ नहीं दूंगी अगर आप मेरी बात नहीं सुनोगे। ये शेड आ रहा है ना सारा, इस मोबाइल के ऊपर शेड आ रहा है। चले, ये क्या हुआ है? तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेलीकॉप्टर। इस तरह से बनते हैं। अब मैं थोड़ा सा टाइम कम बना रही हूँ, जस्ट टू सेव टाइम। आप ये देखेंगे कि इन योर बुक द डायग्राम इज़ रियली कॉम्प्लिकेटेड। बनानी तो उसी पैटर्न को है, बट वो समझ नहीं आ रही। एज इट्स अ कंप्यूटराइज वर्जन, तो उतना छोटा छोटा हम नहीं बना सकते। नाउ आई एम गोइंग टू मेक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओ सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया। ऐसे करके छोटा माइटोकॉन्ड्रिया, बड़ा माइटोकॉन्ड्रिया तो मीन्स रियल डिटेल्ड वर्जन तो बाद में बताऊंगी। अभी कि इसको हमने कैसे बनाना है। थोड़ा सा मेरे जैसे ही कैमरे की तरफ देखो, दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। एक और बना देती हूँ जस्ट टू गिव यू अ पिक्चर कि कैसे मैंने बनाया है। सारा मेरा शेड आ रहा है, सूर्य उधर बैठ जाना। हमजा मैं मोबाइल नहीं दूंगी, चलो उधर चलो। नहीं आई थॉट पॉज हुई भी है। ये ऐसे थोड़ा सा मैं, दिस इज ऑल्सो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। अच्छा, एनिमल सेल डजेंट हैव क्लोरोप्लास्ट, सो आई एम नॉट गोइंग टू मेक क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। नाउ आई एम गोइंग टू मेक गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आई एम ट्राइंग टू फॉलो बुक, लेकिन बुक से हट के थोड़ा पोजिशनिंग चेंज कर सकते हैं। लाइक आई कैन मेक गोल्जी कॉम्प्लेक्स ओवर हेयर, आई कैन मेक माइटोकॉन्ड्रिया ओवर हेयर। पोजीशन चेंज कर सकते हैं। दिस इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स। Now no one is at home to ask Hamza to get busy. ओ ये मूव कर गया। ठीक है, सही। तो ये थोड़ा, दिस इज़ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। आई एम नॉट गिविंग 3 डायमेंशनल एंगल ओवर, थोड़ा सा दे दिया मैंने। ये ना भी दें आप तो। दिस इज़ अ स्टैक ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड देन दिस इज़ अ लिटिल वैक्यूल। आपकी बुक में थोड़ा सा 3 डायमेंशनल एंगल है। ये देखें ना। अब आपको दिल है कि आपको फ़ोन ना मिले, जो मैंने आपको बोला था कि आपको दूंगी। दिस इज़ वैक्यूल। वी आर नॉट स्टडिंग द फंक्शन येट, तो जब पढ़ेंगे तब बताऊंगी। अच्छा, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया। यहाँ पर हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा इस संडे को। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द वन विच डजेंट हैव, इट कैन बी कनेक्टेड। थोड़ी सी यूँ 3 डायमेंशनल एंगल है, ऐसे करके। ऐसे लग रहा है आई एम मेकिंग सम कुकिंग वीडियो वेर आई एम टेलिंग के ऐसे करके थोड़ा सा यूँ है, थोड़ा सा यूँ है। ओके, देन इसको भी थोड़ा 3 डायमेंशनल एंगल दे रही हूँ, 3rd डायमेंशन दिखा रही हूँ, विच इज़ नॉट पॉसिबल इन अ 2 डायमेंशनल पेज। थोड़ा सा आपको खुद से करना पड़ता है। अच्छा, अब इस एंगल इस तरफ आ गया। चलो ये हो गया। दीज आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। आई जस्ट वांट टू मेक अ वीडियो 15 मिनट्स, फिर अपलोड होने में प्रॉब्लम करती है। अब यहाँ पर सेंट्रियूल जो है उसको मैं थोड़ा सा इजी वर्जन दूँगी। ये बुक का तो बिल्कुल ही कंप्यूटराइज वर्जन ट्रू पिक्चर बना रहा है, तो वो थोड़ी सी हमारे लिए
ऐसे करके. Now the centrioles are not present in plant cell. Remember, centrioles are not present in plant cell. Centrioles. थोड़ा सा चूँकि मेरे दो तरफ मेरा ध्यान है, बट आई एम कीपिंग द लेबलिंग्स ऑन ईदर ऑन द लेफ़्ट साइड और ऑन द राइट साइड. इस साइड पे करूँगी. अभी देखें ये क्या हो रहा है. अगर मैं माइटोकॉन्ड्रिया को लेबल करती हूँ तो आई विल, जगह कम है, अदरवाइज़ यहाँ तक मिलने लेके जाना है पेज पे, और फिर सारा सेम हो. ठीक है. वी कैन नॉट लेबल द डायग्राम इन ऑल 180 एंगल्स. गर्ल लड़कियाँ क्या करती हैं, इधर भी बना रही हैं, इधर भी बना रही हैं, इधर भी लेबलिंग कर रही हैं. और लेबलिंग पता है कैसे कर रही हैं, लाइक इधर लेबलिंग, इधर लेबलिंग, इधर लेबलिंग, इधर लेबलिंग, इधर लेबलिंग. इट मेक्स इट लुक सो. और लेबलिंग फिर व्हेन दे आर राइटिंग इन दिस फॉर्मेट, यानी ऐसे लेके जा रही हैं. लेट्स से माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, एंड यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है, यूँ जा रहा है. इट लुक्स सो डर्टी. The whole diagram looks so dirty. So to make it look neat, ये भी शोखा हुआ है. You have to follow. इधर नहीं खड़े हो, इधर खड़े हो जाएं. So you have to follow certain angles. Centriole हो गया. Ribosomes, मैं इसको ribosomes के तौर पे लेबल करने लगी हूँ. These small dots are ribosomes. This is rough endoplasmic reticulum. This one. इसको मैं RER लिख रही हूँ. आपने नहीं लिखना, पूरा लिखना है. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंड दिस वन इज़ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. जगह नहीं है तो मैं इतनी करीब ड्रॉ करूँ, अदरवाइज मैं इसी तरह बराबर एंगल रख के लेबलिंग्स बराबर करके, इंग्लिश भी उसकी इसी तरह बराबर लिखनी है. इस साइड से भी बराबर, लेफ़्ट साइड और राइट साइड ऑफ द डायग्राम. दिस वन इज़ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. थैंक यू हमजा. गोल्जी कॉम्प्लेक्स. Good job. तो अच्छा, अब क्या चीज़ रह गई है. सेंट्रियोल हो गए, स्मूथ एंड सेल मेम्ब्रेन रह गया. लेट्स से लेबल सेल मेम्ब्रेन ओवर हेयर. तो मैं लेके इसको लेफ़्ट साइड पे ही जा रही हूँ. अब मेरे पेज पे सही तरह से प्रॉपर स्पेस नहीं है. आपने बताती हूँ. न्यूक्लियस लेबल हो गया. ये न्यूक्लियस की बहुत सारी लेबलिंग हो चुकी हुई है. अच्छा, I have drawn almost everything. You either call it cell membrane or plasma membrane. Basically, this is plasma membrane. The outermost layer of a cell is called as plasma membrane. 17 मिनट हो गए. I am ending the video here. यहाँ पर भी कुछ माइटोकॉन्ड्रिया या कोई ऑर्गेनील बन सकता है, और इधर भी थोड़ी सी एम्प्टी स्पेस है. I made the diagram a bit big from the page context for you to understand. अदरवाइज थोड़ी सी छोटी करके लेबलिंग को भी फिट इन करना होता है, वट एवर द डायमेंशन ऑफ योर पेजेस, ताकि इधर भी इक्वल लेबलिंग आ जाए, इधर भी इक्वल लेबलिंग आ जाए, और दरमियान में प्रॉपर डायग्राम भी हो जाए. लेट मी टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.